Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be going to start with chapter number 4, Cunning Ministers. So again, before starting the chapter, what we will be doing, हम क्या करेंगे? Warm up exercise. Look at the given picture and put a tick for those that shows good deeds. What do you mean by good deeds? मतलब अच्छी habits. Good deeds means good habits. So अब हम picture देखते हैं. Over here, what is this boy doing? हाँ जी, वो road cross कर रहा है एक अंकल को who can't see, I believe. So this is a good deed. Yes. See, what is this girl doing? This girl, she is helping a injured bird. एक bird है जिसको injury हो गई है, चोट लगी है. So this is very good. We should help. And what are they doing? They are playing with a teddy bear. Again, they are exchanging, maybe exchanging. So this is also a good deed. See, they both are fighting. Not good. This is not a good thing. Over here, what he is doing? I think this particular boy, ये डूब रहा है, तो ये बच्चा उसको बचा रहा है. So again, this is a good deed. And they both are fighting. No, they are not fighting. Sorry. इसको चोट लगी हुई है. You can see the blood over here. So ये इसका friend है जो इसको help कर रहा है. So I think this is clear to all of you. So which one is good deed and which one is a bad deed? So moving ahead with the chapter now. There lived a lion deep inside a dark jungle. कौन रहता था? एक lion रहता था जंगल में. He was a big and handsome lion with a golden mane and fiery eyes. वो किस टाइप का lion था? Very handsome. हाँ, he was a handsome lion with a golden mane and a fiery eyes. Eyes उसकी बहुत fiery थी, reddish. His name was Shera. क्या नाम था उसका? Shera. And he was the king of the jungle. Yes, वो कौन था? जंगल का किंग था. हाँ, lions are the king of the jungle. Like all kings, he too had ministers. उसके भी क्या थे? Ministers थे. To whom he listened to when he was in a good mood. और जब भी उसका मूड बहुत अच्छा होता था तो वो उनको सुनता था. Shera's ministers were two jackals, Manu and Channu. कौन थे? दो jackals थे और उनके क्या नाम थे? Manu and Channu. Okay, remember the names. The jackal, especially Manu, was very cunning. जो मनु था वो बहुत cunning था, बहुत clever था. They kept the king happy by telling him only what he liked. वो हमेशा किंग को यानी कि लायन को क्या बताता था? खाली वही चीजें बताता था जिसको सुन के लायन खुश होता था. सही सही चीजें कुछ भी नहीं बताता. What he liked to hear and they agreed with everything he said. और जो भी वो लाइन बोलता था उसी की हाँ में हाँ मिलाता है, चाहे वो ठीक होता था या गलत होता था. This is wrong, ना? They sang his praises and told him that he was the bravest and the strongest king on the earth. वो हमेशा क्या करते थे? लाइन के आगे उसको हमेशा प्रेज करते थे कि अरे आपके जैसा तो कोई भी नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया आपके गुणगान करती है, ऐसे ऐसे बोलते थे. तो इससे तो वो जंगल का जो राजा था, दैट लायन यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई एम द बिगेस्ट. Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal. तो उसकी वजह से लाइन को क्या लगा कि अरे वाह, मेरे मिनिस्टर्स तो बहुत अच्छे हैं और बहुत मेरे वफादार हैं. लॉयल मीन्स वफादार, फेथफुल एंड लॉयल. He thought he was lucky to have such wise ministers. वो हमेशा ये सोचता था कि मैं कितना लकी हूँ. लकी मीन्स भाग्यशाली. मैं कितना, मुझे भगवान ने कितने अच्छे मिनिस्टर्स दे दिए हैं. So he looked after them, fed them and took them along wherever he went. तो इस वजह से वो हर जगह लायन अपने इन दोनों मन्नू और चन्नू वाले मिनिस्टर्स को लेकर जाता था, उनको खिलाता था, पिलाता था और खूब उनका ध्यान रखता था. The jackals hardly did any work. और ये जो jackals थे ये कोई काम नहीं करते थे. They did not have to fight their enemies to protect themselves, nor did they
have to hunt for food like other animals. तो जो उनके दुश्मन होते थे इन दोनों जैकल्स के, उनको उन दुश्मनों से लड़ना भी नहीं पड़ता था और खाने के लिए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये सब काम कौन करता था? लायन, द किंग ऑफ जंगल. दे ग्रू फैट ऑन वॉट एवर शेरा किल्ड. वो हमेशा क्या मोटे होते जा रहे थे, क्योंकि जो शेरा था वो सबको एनिमल्स को किल करता था और खाते ये लोग थे. Soon they become very arrogant and did not allow any other animal to come near the lion or become friendly with him. जल्दी क्या हुआ, ये बहुत एरोगेंट हो गए कि अरे हम ही हम हैं, और किसी और एनिमल को पास में भी नहीं आने देते थे लायन के. One day Shera was at the river for a drink when he heard an animal below. एक दिन क्या हुआ, शेरा पानी पीने के लिए रिवर में गया. तभी शेरा को किसी एक एनिमल की बहुत तेज आवाज आई. It was so loud that the whole jungle echoed with the sound and startled the lion. वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा जंगल उससे गूंज गया. तो जो लायन था शेरा, वो भी घबरा गया कि अरे ये कैसी आवाज है. He had never heard anything like it before. कभी भी शेरा ने ऐसी आवाज कभी पहले नहीं सुनी थी. In fact, he had really heard the call of the other animals, since they were all scared of him and stayed as far away from him as possible. उसने तो कभी किसी भी एनिमल की आवाज जंगल में नहीं सुनी थी, क्योंकि वैसे ही सारे एनिमल्स शेरा से डरते थे और चुपचाप रहते थे और दूर रहते थे शेरा से. तो उसने कहा अरे ये इतनी तेज आवाज किसकी आ गई. Frightened by the sound, he went rushing back to his den. तो अब हुआ क्या, वो थोड़ा डर गया, उसको डर लग गया शेरा को, और वो जल्दी जल्दी अपने डेन में वापस चला गया. गुफा में रहता है ना, पेल विथ फियर. वो तो कांप रहा था, उसको इतना डर लगा, पूरा उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था. पेल मीन्स पीला पड़ जाना डर से. His ministers were surprised to see the king trembling with fear and wanted to know what had happened. तो जब मिनिस्टर्स कौन, चन्नू मन्नू ने देखा कि अरे ये क्या हो गया आज हमारे राजा को, ये तो एकदम से कांप रहे हैं बुरी तरह से, ऐसा तो हमने कभी भी पहले नहीं देखा. एट फर्स्ट शेरा वुड नॉट टेल देम एनीथिंग. पहले तो शेरा ने शर्म आ रही थी शेरा को कि अरे मैं कैसे बताऊं कि मुझे तो किसी की आवाज से ही डर लग गया. तो उसने तो बताया ही नहीं. ही वॉज टू ashamed टू लेट देम नो दैट ही द किंग ऑफ द जंगल वॉज अफ्रेड ऑफ अ साउंड. तो मतलब वो सोच रहा था कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और मैं ये बताऊं कि मुझे एक आवाज से ही डर लग गया. तो ये सोच के उनको बहुत शर्म आई थी. बट द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड. अगले दिन जब वो फिर से रिवर पर गया, फिर से वही आवाज आई. देन शेरा कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स एंड टोल्ड देम दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव द जंगल एंड गो अवे. तब शेरा ने अपने मिनिस्टर्स को बताया और कहा कि अरे मैंने ना एक फैसला लिया है कि मैं ना ये जंगल ही छोड़ के जा रहा हूँ. So now Mannu and Channu were very disappointed to hear this. तो अब मन्नू चन्नू एकदम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए. What would happen to them if the lion went away? अब उसने कहा कि अगर ये लायन ही चला गया तो अब हमारा क्या होगा. हमें अच्छे से खाने के लिए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमारा प्रोटेक्शन भी होता है, हम कहाँ जाएंगे. They would have to work to find their food and would have to live in fear of the other wild animals. अब उन्होंने सोचा कि अरे भाई अपने लिए ही खुद हमें खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, और अब हमें तो फिर डर डर के रहना पड़ेगा कि कोई भी हमें आके अटैक कर देगा. अभी तो कोई करता नहीं है. नो, दे कुड नॉट लेट द लायन गो टू अनदर जंगल. उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम शेरा को कहीं नहीं जाने देंगे किसी और जंगल में. They begged and pleaded with Shera till he told them that he had been frightened by a terrible sound. उन्होंने क्या किया, बेग एंड प्लीडेड, मतलब बहुत विनती की कि अरे आप प्लीज़ बताओ तो हुआ क्या है, हम बैठे हैं ना, आप हमें बताओ तो. फिर शेरा ने बताया कि अरे मैंने तो एक वॉइस सुनी थी और वो इतनी तेज़ आवाज़ थी तो मैं तो बहुत डर गया, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ. It could only belong to a strong beast who feared no one else in the jungle. तो शेरा ने कहा ये ज़रूर किसी बीस्ट की, कोई राक्षस है या कोई दानव है जिसकी ये आवाज़ है, जो मुझसे भी नहीं डरता है और पूरे जंगल उससे कांप उठा है, उसको किसी से डर नहीं लगता है. Hearing this, the two jackals smiled to themselves.
अब जब जैकल्स ने ये सुना तो वो आपस में वो अपने अपने मन में हंसने लगे, फॉर दे न्यू दैट देयर कुड बी नो एनिमल इन द जंगल स्ट्रॉन्गर देन द लायन। अब जो जैकल्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उनको तो पता था कि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे जंगल में कोई हो ही नहीं सकता, तो वो हंसने लगे मन ही मन। They thought that शेरा was very foolish। अब उनको समझ आ गया कि ये तो जो शेरा है ना ये बहुत ही बेवकूफ़ है। Just because the animal had made a loud noise, it did not mean that it was more powerful than the lion। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी ने बहुत तेज आवाज़ निकाल दी तो वो लायन से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। But they did not tell this to the lion। But वो बहुत क्लेवर थे, बहुत चालाक थे, तो ये चीज़ उन्होंने शेरा को नहीं बताई। Instead, Manu said that he would go and find out more about that animal। और मनु ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने लायन को बोला कि अरे अच्छा ऐसी बात है, ओ हो, तो ठीक है हम मालूम करते हैं कि ऐसा कौन आ गया है इस जंगल में और फिर हम आपको बताते हैं। What if the beast kills you? asked शेरा। अब शेरा तो बहुत डरा हुआ था, तो उसने कहा कि अगर उस बीस्ट ने तुम्हें ही मार दिया फिर क्या होगा। To this Manu replied wittily। बहुत क्लेवरली मनु ने बोला, A faithful servant is not afraid of losing his life in the service of his master। उसने क्या बोला कि जो एक फेथफुल सर्वेंट होता है, मैं आपका एक फेथफुल सर्वेंट हूँ और अगर मेरी जान भी चली जाए, मुझे अपनी लाइफ भी देनी पड़े आपके लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं मालूम ज़रूर करूँगा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज रिप्लाई। तो जो शेर था वो तो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, देखो ये तो मेरे लिए अपनी लाइफ तक देने के लिए रेडी है। एंड मनु विद चनु इन टो वेंट ऑफ टुवर्ड्स द रिवर। तो मनु और उसके पीछे पीछे, इन टो मीन्स बिल्कुल पीछे पीछे, चन्नू भी चला गया और वो कहाँ गए, रिवर की तरफ। क्यों गए रिवर की तरफ, क्योंकि वहीं से तो आवाज़ आ रही थी। To their surprise, the jackals found that the animal that had frightened the lion was a big bull। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो वो तो सरप्राइज ही रह गए। उन्होंने क्या देखा कि अरे ये कौन है, ये तो एक बहुत बड़ा बुल है जिसने आवाज़ निकाली थी। Who had lost his way in the jungle। क्योंकि वो अपना जहाँ उसको जाना था वो रास्ता भूल गया था, तो वो घबरा रहा था, तो बहुत तेज तेज आवाज़ें निकाल रहा था। Manu scolded the animal for making so much noise and disturbing the king of the jungle। अब मनु ने उसको डांट लगाई कि अरे भाई तुमने इतनी तेज आवाज़ निकाली और तुमने डिस्टर्ब कर दिया हमारे राजा को, तुम्हें नहीं पता ये पूरे जंगल के किंग है। The bull became quiet immediately। एकदम से वो जो बुल था वो घबरा गया और उसने आवाज़ निकालनी बंद कर दी। He told Manu that he did not know his way around and that he was willing to go and tell the king that he was sorry for annoying him। तो अब उसने क्या बोला कि अरे मैं तो अपना रास्ता भूल गया था और अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताएं। दैट ही वॉज विलिंग टू गो। अब मैं जहां बोलेंगे मैं वहां चलूंगा, राजा के पास चलूंगा और मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा अगर वो मुझसे नाराज है। बट ही फर्स्ट वॉन्टेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम। बट उसने कहा कि मैं तभी जाऊंगा राजा के पास कि अगर आप मुझे ये बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पहुंचूं और जो लायन है वो मुझे खा जाए। सबको डर लगता है। द जैकल्स टोल्ड द बुल टू वेट राइट हियर। तो जैकल्स तो वैसे ही बहुत क्लेवर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ वेट करो, हम अभी आते हैं। And off they went to Shera and told him that the creature that was making all the noise was only a bull। अब वो शेरा के पास गए और बताया कि वो जो जिसको आप बीस्ट बीस्ट कह रहे थे ना, वो क्रीचर और कोई नहीं था, वो कौन था, एक बुल था। बट द बुल वॉज नो ऑर्डिनरी बुल। अब वो दे आर वेरी क्लेवर, तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये कोई आम तरीके का बुल नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत स्पेशल बुल है। ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, भगवान ने भेजा इसको स्पेशली। एंड द गॉड्स देमसेल्फ हैड ग्रांटेड हिम परमिशन टू रोम वेयरएवर ही प्लीज्ड। और भगवान ने उनको परमिशन दी है इस वाले बुल को कि जहाँ मन करे वहाँ पर घूमो और जो आवाज़ निकालनी है वो आवाज़ निकालो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी तरफ से स्टोरी बना दी।
आई शुड हैव नोन, क्राइड शेरा। शेरा ने कहा, ओहो, मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। It was clear from his loud and fearless bellowing that he had extraordinary powers. अब उसने कहा कि जिस तरह की वो आवाज़ निकाल रहा था, इससे पता ही चल रहा था कि वो fearless है, उसको किसी से डर नहीं लगता है और वो कुछ स्पेशल है और उसके पास कुछ extraordinary, बहुत स्पेशल पावर्स हैं। What should I do now? अब मैं क्या करूं? The cunning Manu replied, I told the bull that he might be a king anywhere else. So Manu was very cunning. The jackals are cunning, as you know, and intelligent too. तो उन्होंने कहानी बनाते हुए क्या बोला कि अरे मैंने बुल को बोल दिया है कि इस जंगल को छोड़कर तुम और कहीं के भी राजा बन सकते हो, पर यहाँ के नहीं। बट हियर ओनली यू आर द किंग, यहाँ पर एक ही राजा है और वो आप हैं। शेरा सेट अप वेरी स्ट्रेट एंड लुक्ड वेरी प्राउड। अब ये सुन के तो एकदम जो शेरा था ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ गया और उसको बहुत प्राउड फीलिंग आई कि आहा, मैं ही राजा हूँ, ये बात ठीक बोली है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑल्सो ओवर हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द बुल एंड द किंग इज हियर। बुल को वो वहीं पर छोड़कर आए और ये दोनों मन्नू एंड चन्नू बताने आए हैं सारा किंग को। Manu added, I also told him that if he wants to live in the jungle, he has to come and say sorry to you. अब मनु ने क्या बोला कि मैंने उसको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अगर इस जंगल में रहना है तो पहले यहाँ पर आए और आपसे सॉरी बोले। The lion was so pleased by now that he was almost purring like a cat. अब तो लायन इतना खुश हो गया कि हाँ, वो बिल्कुल जैसे कैट होती है ना, एकदम कि हाँ, स्माइलिंग और बहुत खुश, वैसे ही खुश हो गया ये सुनकर। And what did the bull have to say to that? He wanted to know. अब उसको लगा कि अरे मुझे अब ये भी बताओ कि जब तुमने ये बोला तो बुल ने क्या कहा? Manu replied, he has agreed to come and bow before you on the condition that you promise not to harm him. तो मनु ने कहा हाँ, बुल रेडी हो गया, बट उसकी खाली एक कंडीशन है कि जब वो आएगा वो आपको बो भी करेगा, बट आप उसको कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे। The lion agreed happily. लायन तो वैसे ही डरा हुआ था, शेरा तो डरा ही हुआ था, उसने कहा कि हाँ, ठीक है, बुला कर लाओ, मैं उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। The two jackals looked at each other and smiled. अब दोनों के दोनों जो jackals थे, मनु एंड चन्नू, उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और हंसे कि ये कितना बेवकूफ है। They knew that the lion was now completely in their power and would agree to anything they said, and soon the bull would be in their power too. वो एक दूसरे की तरफ हंसे और उन्होंने कहा कि हाँ, अब तो बिल्कुल ये जो शेरा है बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं वही करेगा और अब बुल भी वही करेगा जो हम बोलेंगे, तो दोनों के दोनों बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। बिकॉज दोनों के दोनों क्या हैं? फुलिश। So they went and told the bull that they would take him to the lion. अब वो बुल के पास गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें लायन के पास लेकर चलते हैं। They warned him that the king was very short-tempered and cruel. बट उन्होंने बुल को क्या बोला कि ये जो शेरा है, जो इस जंगल के राजा हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर है और बहुत ज़्यादा क्रूएल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट दैट ही नीड नॉट बी अफ्रेड, पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू वॉट वी से एंड लिसन टू अस ऑलवेज यू विल बी सेफ। उसने कहा कि जैसा जैसा हम कहते हैं अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमेशा सेफ रहोगे। दे टोल्ड हिम एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लायन। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वरी मत करो, हम तुम्हारी रक्षा लायन से करेंगे। द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जैकल्स एंड वेंट with them to the king and bowed low before him. अब जो बुल था वो उसने कहा कि आपका बहुत एहसान है और वो फिर लायन के पास चला जाता है और अच्छे से बो करता है, बेंड करता है और उनको हेलो करता है। शेरा, he said to the lion, I'm sorry for making so much noise and disturbing you. अब क्या बोला बुल ने कि सर मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतनी तेज आवाज निकाली और आपको डिस्टर्ब किया। द लायन रेज्ड हिज पॉ एज इफ टू से इट वॉज ऑल राइट। तो
लायन ने क्या किया, अपना पॉ, अपना पंजा ऊपर किया और इस तरह का सिग्नल दिया कि ठीक है, समझ आ गया मुझे. Then he asked the bull to sit beside him and tell him all about himself. फिर लायन ने, शेरा ने क्या बोला कि ठीक है, बैठो मेरे पास बैठो और अपने बारे में सब कुछ बताओ. The bull sat down. It was surprised by the lion's gentleness. जो बुल था वो बैठ गया और वो बहुत सरप्राइज हो गया कि अरे ये तो बहुत जेंटल है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है. He told the king, I am from a nearby city. क्या बताया बुल ने कि मैं एक नियर बाय सिटी में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ जो पास में ही है जंगल के. I was carrying a load for a merchant to another city. मैं कुछ सामान लेकर जा रहा था एक सिटी से दूसरी सिटी एक मर्चेंट के लिए. थ्रू द जंगल, जंगल से होते हुए. ऑन द वे आई फेल डाउन फ्रॉम टायर्डनेस. मैं बहुत थक गया और मैं गिर गया. द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड लेफ्ट मी एंड वेंट अवे. और मर्चेंट ने क्या सोचा कि मैं मर गया हूं, तो इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया. बट आई रिवाइव्ड इन अ फ्यू डेज. बट मुझे थोड़े दिन के बाद होश आई. I fed on the green grass of the jungle and became strong and healthy. मैंने थोड़े दिन तक जंगल में जो ये हरी भरी घास थी वो खाई और मेरे अंदर ताकत आ गई. However, I was very lonely. पर मैं बिल्कुल अकेला था. That is why I was calling out like that. He ended. तो यही रीजन था कि मैं इतनी तेज तेज आवाजें निकाल रहा था. The lion by now had taken a great liking to the bull. अब जो लायन था उसको वो बुल बहुत अच्छा लगा. He told the bull to stay in the jungle and be his friend. अब लायन ने क्या बोला बुल को कि अरे तुम मेरे फ्रेंड बनो और इसी जंगल में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You will never be lonely now. अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, said the lion. You must live with me and tell me tales of the city. तुम मेरे साथ रहो और शहर की कहानियां सुनाओ कि शहर में क्या क्या होता है, तुम तो शहर में रहे हो ना. So the bull stayed on. तो बुल वहीं रहने लगा. He told Shera many stories about far away places and people. उसने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई शेरा को कि कहाँ पर जहाँ जहाँ वो गया था, सिटी के बारे में, लोगों के बारे में. The lion became so fond of the bull that he almost forgot his ministers. तो लायन को वो बुल इतना अच्छा लगने लगा कि वो अपने दोनों मिनिस्टर्स को भूल ही गया ऑलमोस्ट. किसको? जो दोनों जैकॉल्स थे. He had no time for them now. अब शेरा के पास उन दोनों के लिए, चन्नू मन्नू के लिए कोई टाइम नहीं था. Thus the jackals realized that those who try to act too clever and fool others end up being fooled themselves. अब उनको समझ आ गया कि जो लोग ज़्यादा चालाकी करते हैं और सोचते हैं कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, एक दिन वही लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं. So that's all in the story, kids. I hope you liked it. So this is a big lesson that we should never try to befool others. If someone is doing good for you, you should be grateful to that person. Now coming to the word meanings, fiery eyes, angry eyes, red eyes with anger. Arrogant, who is very proud. Into, following, close behind. Protect is to save. Fed means eating something. Wittily, cleverly. Bellow, bull's sound, जो बुल आवाज निकालता है. Revived, woke up after fainting, जैसे बुल फेंट हो गया था. So now we will be doing the comprehension part. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. Now all of you know how to fill the OMR sheet. So first one, Shera was the king of the forest. So what we will be writing over here? Forest. So the first option is forest. Manu and Chanu were what? Ministers. They were ministers of the king. The bull was very grateful to the jackals. The jackals thought that Shera was very. Jackals ने क्या सोचा? Shera was very foolish.
After that, coming to the fill in the blanks. One day Shera was at the river for a drink. So what you will be writing over here? Drink. The ministers could not let the dash to go to the another jungle. कहाँ नहीं जाने देना चाहते थे? Lion को, because they were getting all the facilities from him. So the second one is lion. What if the beast kills you? Who said this? Shera to the jackals. Manu scolded the dash for making so much noise. किसको scold किया था? Bull. बुल को स्कोल्ड किया था कि why you made so much of noise. The bull was a dash of God. बुल कौन था? Messenger. ये बोला था. They knitted a story ना. Messenger of God. The lion became very fond of the bull. So this is the sixth one. Now moving ahead. Say if the given statements are true or false. Shera was the name of the lion. Yes, this is true. The jackals were very cunning. Yes, they were very cunning. This is true. The lion had a minister. No, they had two ministers. So false. Not only one minister, had two ministers. The bull killed the jackals. False. The bull told the stories of the city to the lion. True. So that completes the comprehension part, kids. Hope you like the story and enjoyed the comprehension part. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.